Good morning. We're starting. I'm welcoming you with a very big heart with the next topic. Again, this is one of the interesting topics because you'll be talking about your brain and you will be talking about your nervous system, right? So the name of the chapter is neural control and coordination, correct? So first the chapter के words को तीन words को understand करेंगे. What is neural control and coordination? है ना, chemical control and coordination में we spoke about coordination, referring to we spoke about how are different aspects or different attributes or different physiological activity of your body is coordinated by glandular secretions, that is hormonal secretions. So now in this chapter what we will be talking about is specifically with respect to neural control, referring to neural tissue. अब न्यूरल टिश्यू क्या है बेटा? आपके न्यूरल टिश्यू इज योर न्यूरॉन्स एंड योर न्यूरोग्लिया सेल्स. सो दो टाइप के टिश्यूज है ना. वी स्पोक अबाउट न्यूरॉन्स इन द चैप्टर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन्स के बारे में वापस डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, राइट? we'll be learning a notch higher than this particular thing. So बोलने का मतलब ये है बेटा कि we spoke about neurons, we spoke about neuroglia cells. In this particular chapter, we will have to talk about holistically how are these different aspects of your body or different aspects of your nervous system controlling your body. ठीक है? तो in this chapter what we are talking about, हमने nervous system को already classify कर दिया है in that chapter if you remember, correct? In structural organization. So we have already classified this particular topic with respect to neural system. सब neural system को just revise करना है हमको, right? So if you have to categorize neural system, we divide it under two sections, that is CNS and PNS. ये सब मैं board पे नहीं लिख रहा हूँ बेटा because we have to complete these two topics today on the board, which are there on the board. ठीक है? So quick recap of what we did. So यहाँ पे ही बना रहा हूँ, invisible चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? Invisibly हम लिख रहे हैं, तो imagine करना पड़ेगा. तो न्यूरल सिस्टम दो टाइप के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पेशलिटी क्या है? दैट इट रन्स थ्रू द मीडियल एक्सिस, करेक्ट? मीडियल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, नियर द सेंट्रल एक्सिस और लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस. Whereas peripheral nervous system, as the name says, it moves or it is reaching or it is associated with reaching the boundaries, periphery of your body, peripheries of your body, correct? So central nervous system की दो bodies, दो constituting bodies क्या है बेटा? You have your brain and you have your spinal cord. Brain is your CPU, central processing unit, correct? ब्रेन की एक्सेसरी फंक्शन करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड. सो टेक्निकली व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ दीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है? इट इज जस्ट लाइक अ ट्री, राइट? ये ट्री के जड़े हैं, ये ट्री के रूट्स है, ये ट्री के ब्रांचेस है, राइट? व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अभी अंडरस्टैंडिंग इट. सो बोलने का मतलब ये है बेटा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रांचेस निकलते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी अलग अलग टाइप के ब्रांचेस हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट दैट. ठीक है? सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो एट्रिब्यूट्स क्या बेटा? ब्रेन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एनसेफेलॉन, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड. Peripheral nervous system is further divided under two sections, that is somatic neural system and autonomic neural system. Somatic neural system क्या है बेटा? Which is associated with voluntary activities, मतलब that branch of PNS, right? That branch of PNS which is dealing with voluntary activities, or in other words, which is supplying nerve impulses to the voluntary muscles of your body, मतलब skeletal muscles of your body. तो ये जो constitute करता है that is somatic neural system. Difference यही है कि somatic neural system basically talks about only supplying impulses to your skeletal muscles or striated muscles, whereas autonomic nervous system, नाम बता रहा है autonomic, है ना? हम बोलते हैं autonomous institute. ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट या फिर ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? जो खुद से चलते हैं, जो they don't have a controlling body, they don't have a controlling, they are not affiliated to any other
इधर कंट्रोलिंग यूनिवर्सिटी, करेक्ट। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस है, वैसे ही ऑटोनॉमस का मतलब क्या है, खुद से चलने वाले, मतलब टेक्निकली दे आर नॉट डायरेक्टली और दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रेन। अब ऐसा तो नहीं होता ना बेटा कि दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रेन, ऐसा तो कभी नहीं होता, बट देयर आर few aspects of your body, for example when you talk about your heart, when you talk about the peristalsis of your internal मतलब peristalsis of your smooth muscles, so technically smooth muscles are your involuntary muscles, और जो involuntary muscles को जाता है those nerve supply और though that neural system is referred to as autonomic neural system। so हम चैप्टर में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल हेड कॉर्ड खत्म, वो खत्म कर देंगे। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दैट इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एंड उसके बाद वी विल टॉक अबाउट ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो अगेन चैप्टर बेसिकली टॉक्स अबाउट चैप्टर बेसिकली हैज 3 मेजर मॉड्यूल्स। तो पहला इनिशियल सेक्शन क्या बोलता है, टॉक्स अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरल सिस्टम। दूसरा सेक्शन बोलता है नर्व फिजियोलॉजी। इन दिस चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक व्हिच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इज नर्व फिजियोलॉजी, कि इंपल्सेस बने कैसे, इंपल्सेस ट्रांसपोर्ट कैसे हुए, व्हाट आर द मैकेनिक्स बिहाइंड दैट, व्हाट इज द बायोफिजिक्स बिहाइंड दैट। सो वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। सो सेकंड मॉड्यूल हमारा क्या है, नर्व फिजियोलॉजी, ठीक। थर्ड मॉड्यूल है हमारा with respect to sense organs। so here in this chapter sense organs हम लोग जो majorly concentrate करेंगे that will be eyes and ear। और जनरली नीट में भी बेटा कि हर alternate year जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पिछले साल आईज के ऊपर क्वेश्चन था, कॉर्निया के ऊपर क्वेश्चन था, मे बी दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट ईयर। so every alternate year, this is just a pattern which they follow। I am not you know structurally saying कि यही होगा, stereotypically saying कि यही होगा, यही आएगा, ईयर ही आएगा, तो आईज मत पढ़ो। so we will have to talk about sense organs। so sense organs में ये दो मेन सेंस ऑर्गन्स हैं, then we will also have to talk about tongue and nose in a partial, मतलब सिर्फ समझना है कि क्या होता है, very they are comparatively easier than ear and eyes, ठीक है। so chapter is a very massive chapter in which ways it might take 12 to 13 lectures। let's try to finish up let's try to take up extended lectures so that we can wind up this particular chapter in shorter duration or shorter number of lectures। cool। coming back, तो peripheral nervous system के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। so peripheral nervous system में you have somatic and autonomics। somatic neural system comprises of cranial nerves and spinal nerves। मैंने आपको बताया था central nervous system is a tree। ब्रेन से जो ब्रांचेस निकलते हैं उसको बोलते हैं cranial nerves। how many pair of cranial nerves do we have? 12 pair of cranial nerves। so in this chapter you will have to remember or you will have to learn all these 12 pair of cranial nerves, उसकी physiological activity, उसकी not physiological activity, my mistake, not physiological activity pertaining to this, but cranial nerves और cranial nerves की distribution, cranial nerves कहाँ पे, उसके types क्या है, उसके distribution क्या है, उसकी activity क्या है, etc etc। we'll talk about that। and then we have spinal nerves। spinal nerves जो spinal cord से निकलते हैं, कितने हैं हमारे पास? 31 pair of spinal nerves, 31 pairs, करेक्ट ग्रामर, 31 pairs of spinal nerves। cool। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपना सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब क्रेनियल नर्व्स के और ब्रांचेस, ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स के और ब्रांचेस, फाइन ब्रांचेस which reach the smooth muscles, which reach the interior smooth muscles of the body are referred to as autonomic neural system। so autonomic neural system के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इतना ज्यादा एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखोगे तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ब्रेन के बारे में भी बहुत छोटे से चीजों में वाइंड अप कर दिया है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू स्टडी एवरीथिंग। कूल। सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो हम पूरे चैप्टर में यही पैटर्न फॉलो करेंगे, यही पर्टिकुलर रोल फॉलो करेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये हो गया। सो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ अगेन कंटिन्यूइंग विद द इंट्रोडक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज
हर एक डिवाइस या हर एक मशीन की कंट्रोल सिस्टम होती है, जैसे कंप्यूटर की कंट्रोल सिस्टम है, दैट इज योर सीपीयू, राइट। एवरी पर्टिकुलर जैसे सुपर कंप्यूटर्स होते थे, जैसे डेटा मैनेजिंग सर्वर्स होते थे, एवरीवेयर देयर इज अ कंट्रोलिंग यूनिट, राइट। सो जो रेगुलेट करेंगे, है ना, सर्वर के जैसे, तो तुम्हारे बॉडी में भी देयर आर टू टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, जिसके एक कंट्रोल सिस्टम वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, दैट इज केमिकल कंट्रोल सिस्टम। Neural control system, again neural control system or chemical control system, both of these control system they are working in harmony technically, right। So बोलने का मतलब ये है बेटा कि central nervous system is associated with chemical neural system, chemical system, and chemical system is linked with your neural system. So अब how are they linked? Can we say that chemical system and neural system, chemical system is dependent on neural system is dependent on chemical system? क्या ये मैं बोल सकता हूँ? अगर हाँ, yes, if you get a question in your exam that chemical system is dependent on the neural system and neural system is dependent on the chemical system, right? So the statement is absolutely true without any exception. So to prove this particular statement, we need to understand a few examples. Examples से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होगी, है ना। तो पहला कैटेगरी, पहला एग्जाम्पल क्या है विद रिस्पेक्ट टू पार्चुरेशन। पार्चुरेशन हम डिटेल में पढ़ने वाले इन द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बट व्हेन यू टॉक अबाउट पार्चुरेशन, पहला स्टिम्युलस पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी या लेबर का पहला स्टिम्युलस क्या है? फुली ग्रोन फीटस, राइट। फुली ग्रोन फीटस एक हार्मोनल चेंजेस शो करता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस द प्रोजेस्टेरॉन टू एस्ट्रोजन का रेशियो इन द मदर्स बॉडी। सो फुली ग्रोन फीटस के वजह से प्रोजेस्टेरॉन टू एस्ट्रोजन का रेशियो बढ़ा, मतलब एक केमिकल सिस्टम बढ़ा, ठीक है। नाउ दिस केमिकल सिस्टम इज एसोसिएटेड, दिस केमिकल सिस्टम विल रेगुलेट द यूटेराइन मसल्स। अब यूटेराइन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए एक हार्मोन है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। सो नाउ ऑक्सीटोसिन, इफ यू रिमेंबर, इज अ न्यूरो हार्मोन, करेक्ट। ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है? हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा है, रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, व्हेन यू टॉक अबाउट द एग्जांपल्स, सो ऑक्सीटोसिन इज अ न्यूरो हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय योर ब्रेन। अब बोलने का मतलब ये है, बोलने का रीजन ये है बेटा कि यहाँ पे there is hormonal system also integratedly working and there is chemical neural system also which is integratedly working, right? So oxytocin release होगा, oxytocin will cause smooth muscle contraction. The smooth muscle contraction is again a stimulus for release of oxytocin. मतलब देखो, mechanical stimulus is the stimulus for chemical secretion, that is release of oxytocin. तो जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जितना ज्यादा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन। सो दैट इज हाउ द इंटरवल बिटवीन द डिलीवरी और पार्चुरेशन डिक्रीजेस। वी ऑल्सो स्पोक अबाउट दिस, आई गेस, राइट। तो यहाँ दिस इज वन एग्जांपल, और एक एग्जांपल क्या है आपका? एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन। इफ यू रिमेंबर, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन इज द पार्ट ऑफ sympathetic nervous system, right? By the stimulation of the sympathetic nervous system, the blood is flooded with adrenaline. अब adrenaline तो एक हार्मोन है of adrenal medulla and also it is a neurotransmitter. So again, it has dual function here, right? So वो release होगा blood में और उसकी जो physiological activity है, it will start showing its physiological activity. So neural system is, so hence we have to include that neural system is linked with chemical system and chemical system is linked with neural system. ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था विद रिस्पेक्ट टू योर टॉपिक। ठीक, मूविंग अहेड, डिफरेंसेस। अब दोनों तो इंटीग्रेटेड है पर दोनों में डिफरेंसेस है, करेक्ट। न्यूरल सिस्टम और केमिकल सिस्टम में डिफरेंसेस क्या क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। सो न्यूरल कंट्रोल वर्सेस केमिकल कंट्रोल लिखते हैं। सो पहला इफेक्ट क्या है? न्यूरल कंट्रोल इज एसोसिएटेड बाय nerve impulses. Neural control is associated by nerve impulses, whereas chemical system is associated by chemicals
that is hormones, chemical messengers that is hormones. ठीक है. न्यूरल सिस्टम जो है इट इज शॉर्ट एक्टिंग, जो ड्यूरेशन इज शॉर्ट लिव्ड, द एक्टिविटी इज शॉर्ट लिव्ड, whereas chemical system में it is long lasting. इसकी एक्टिविटी शॉर्ट लिव्ड है, आप समझ में आ रहा है आपको, है ना. जैसे रिफ्लेक्स एक्शन शॉर्ट लिव्ड एक्शन है, ठीक है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ केमिकल सिस्टम, ये तो पता ही, ग्रोथ हार्मोन की एकदम स्लो एक्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है. सिमिलरली दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस एक्टिविटी, या फिर दिस इज क्विकली एक्टिंग एंड इसकी एक्टिविटी जो है दैट इज कंपैरेटिवली स्लोअर. Are we understanding it? So ये major association है with respect to major differentiation है with respect to chemical system and neural system. और एक effect है with respect to it is the transmission is via axons. Transmission of the impulses, transmission of messages, that is impulses only. And a transmission of messages is by neurons. Whereas here, the transmission of the impulses or messages is by blood. है ना? Hormones है तो blood associated है with respect to blood. So this is the basic. ये देखो, ये बच्चों वाली बातें हैं, तो इसलिए हम शॉर्ट में डायरेक्ट खत्म कर रहे हैं. ठीक है. हम अब इतने छोटे टॉपिक्स पे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट सिलेबस का पार्ट है, नोट्स में लिखा हुआ है that I don't want any particular student to come ahead and complain कि सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, तो इसलिए पढ़ा दिया. ठीक है. सब पे खत्म करते हैं. Now let's talk about central nervous system. So control and coordination में now the first topic which we talked about is central nervous system. So when you talk about central nervous system, अब central nervous system में आपको ब्रेन पढ़ना है और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है. ठीक है. So let's try to understand brain first, है ना. अब क्लास में होगा तो हमें इसका डिसेक्शन करके मैं आपको बताता, बट ठीक है, the diagrams are pretty much clear, है ना. अगर डायग्राम आपके नोट्स वाले डायग्राम अगर क्लियर नहीं है तो बेटा आपके पास ये वीडियो का डायग्राम है, so you can लेटिंग्स अगर क्लियर नहीं होगी, बच्चे की हैंडराइटिंग अगर क्लियर नहीं होगी, so you can understand the labels, understand the diagram and you can draw it from the video. Cool. So let's understand what is brain. ठीक है. अब brain या फिर also referred to as central nervous system का first part which we talk about is brain or encephalon. Encephalon, brain को ही encephalon बोलेंगे. Now to some interesting topics with respect to brain, ना. We only know a portion of the brain, मतलब technically हमको पूरा brain, हमको सिर्फ histology पता है, हमको brain का पूरी mechanism भी डिटेल में पता नहीं है. So a lot of things are still a mystery. And when you talk about human brain is a masterpiece altogether. है ना. ह्यूमन ब्रेन मास्टरपीस क्यों है? बिकॉज ह्यूमंस हैव दिस प्रॉपर्टी, और द ह्यूमन ब्रेन हैज दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, और जो सब में है मेजरली, राइट. बट वी हैव दिस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल स्टिमुलस इन अ बेटर वे. Correct. For example, if I am talking something, you are able to understand it absolutely clearly.
करेक्ट, क्योंकि आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, क्योंकि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, एंड यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली. बट व्हेन यू टॉक अबाउट डॉग्स और कैट्स, they will be able to understand your language. Maybe वो आपकी sign languages समझ सकते हैं, but they will not be able to understand each and everything which you talk about, right? So human brain और dog के brain में differences क्या है? Some areas are well developed in dogs, for example. For them smell is a very characteristic boon, correct? तो वो smell से सारी चीजें associate करते हैं. So for them, their area with respect to processing the smell is functioning, या फिर is functioning to a greater extent. But humans में सारी चीजों का बैलेंस करके ह्यूमन ब्रेन, मतलब टेक्निकली ह्यूमन ब्रेन बना है बेटा, ठीक है. So if you talk about cerebral capacity, if you talk about, there are so many beautiful concepts with respect to brain. There's a concept of mirror neuron which I always keep on telling you कि ये एक सबकॉन्शियसली ऐसा होता है. मिरर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप फॉर एग्जांपल अगर क्लास में बैठे हो, अगर आपने किसी को पानी पीते हुए देखा तो तुरंत आपको भी ऐसा प्यास लगता है. मतलब अगर आपने शायद उसको नहीं देखा होगा, मे बी इफ अगर आपने उस इंसान को नहीं देखा होगा तो आपको शायद प्यास नहीं लगती, राइट? सो टेक्निकली हिज थर्स्ट इज कॉजिंग that other individual's thirst is causing your thirst. मतलब technically the impulses or the stimuluses are absolutely copied, they are mirrored between the two individuals, है ना? अब बोलने के लिए ब्रेन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन के हिसाब से डेवलपमेंट, इंक्रीज इन द क्रेनियल कैपेसिटी, चैप्टर एवोल्यूशन में पढ़ेंगे. इंक्रीज इन द क्रेनियल कैपेसिटी वाज द हॉलमार्क स्टेप ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट. आज ह्यूमंस एक सिविलाइजेशन में रहते हैं, आज ह्यूमंस एक लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं. all that is associated or all that is gifted to us by the greater developing brain. ठीक है, आपने ये सुना होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों की सेंसरी इनपुट जो मतलब न्यू बॉर्न, एब्सोल्युटली देयर सेंसरी इनपुट्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना? इफ यू रिमेंबर आई हैव आल्सो शोन यू अ मूवी जहां पे अपने छोटे बच्चों के बारे में बताया था कि उनकी आईसाइट टेक्निकली थोड़ी पहले ब्लैक एंड व्हाइट होती है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होती है, फिर कलर ब्लर होती है, फिर जाकर परफेक्ट विजन आता है. सो a lot of things which are मतलब slowly and steadily the brain cells, the brain keeps on developing in an adult individual, right? और ये भी चीज आपको पता है कि damage to the section of the brain or part of the brain will damage the entire part of the body associated with, correct? तो एक बहुत beautiful movie आई थी, that is Lucy. ये लूसी के बारे में भी, लूसी मूवी के बारे में भी हमने, अब लूसी नाम जो है इट्स अ क्वाइट फेमस नेम बिकॉज यू विल बी टॉकिंग अबाउट इन ह्यूमन एवोल्यूशन, यू विल बी टॉकिंग अबाउट अ फॉसिल. एक छोटा बेबी का फॉसिल मिला था, उनका हेड मिला था, उन्होंने इसको नाम दे दिया लूसी. एंड बेस्ड ऑन दैट फॉसिल ऑफ लूसी दे वर एबल टू hypothesize या postulate, they were able to put up the postulates with respect to the entire characteristics of the human evolution, right? So Lucy मूवी में लोग ने ये बताया था कि human brain has this capacity of using, है ना, of using only, मतलब technically we are only using 10% of your cerebral capacity. What do you mean by cerebral capacity? Cerebral capacity क्या है basically? आपके पास इतना सारा ब्रेन टिश्यू है, आपके पास इतना सारा कैपेसिटी है, ब्रेन हैज सच ग्रेटर कैपेसिटी, बट वी आर ओनली एबल टू यूज ओनली 10% ऑफ द कैपेसिटी. ठीक है, इसका क्लासिक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट, अब देखो हमारे केस में वी आर सो कॉन्शियस, सो हमारी कान की स्टिमुलस, eyes की stimulus, nose की stimulus, all of that is balanced, well balanced. But if you talk about blind individuals, so blind individuals की there is no stimulus which is being blinded, है ना? So there is no stimulus associated with their eyes. So उनका जो area है with respect to processing the vision or processing the visual aspects or visual images,
ये सब चीजों को प्रोसेस करने वाला जो पार्ट है ऑक्सीपिटल लोब, दैट इज लेस डेवलप्ड। सो टेक्निकली उनका कोई और रीजन बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगा। सो इसीलिए हमने ये सुना रहेगा कि जिसकी आंख नहीं होती तो उनकी कान सुनने की ताकत बहुत स्ट्रांग होती है, राइट। एंड एवरी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट एट्रीब्यूट, इट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। कुछ लोगों की कान सुनने की ये जो एबिलिटी है बहुत स्ट्रांग रहेगी, कुछ लोगों की देखने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। लाइक फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू देयर इज अ गर्ल इन रशिया जो एक डिस्टेंस से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर अवे तक का ऑब्जेक्ट देख सकती है। मतलब इफ प्रोवाइडेड इट्स अ प्लेन सरफेस और इट्स अ ओपन सरफेस, है ना, शी कांट सी थ्रू द वॉल्स। There are a lot of individuals who can produce current, whose body can produce current. So अब ये जो चीजें हैं cerebral capacity का जो concept है, that we are trying to, we only are able to use 10%. अगर हम 10% के ऊपर गए, so we might be able to control our own body, और उसके भी ऊपर अगर गए तो we might be able to channelize by our energy, by our attributes, we might be able to channelize and control others also. देखो ये सब चीजें अगर आप रिलेट करके देखोगे ना तो बात सही आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन यू कंट्रोल योर ओन बॉडी? यस, यू कैन सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली कंट्रोल योर ओन बॉडी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान को कोई टाइप की इंजरी हो जाती है ना, इंजरी हो जाती है इन दी एंटायर डे टू डे डेली कोर्स, आपको सुबह के टाइम में या फिर दोपहर के टाइम में यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पेन। बार बार दिमाग में ये नहीं घुसता कि मेरे को लगा है, मेरे को लगा है, मेरे को लगा है, राइट, बिकॉज योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली फंक्शनिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग अदर एक्टिविटीज। पर जैसे जैसे रात होने लगती है आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाई डू यू थिंक सो कि जैसे ही रात होने वाली है योर ब्रेन इज प्लानिंग, अब उसको सोना है, इट इज प्लानिंग कि वो शांत होने वाला है, मतलब the activities are getting a little lower and slower. So since the brain which was radiating or which was firing up impulses to various activities for various activities of your body, now the activities are decreased. So that activity which is having maximum stimulus, उसका आपको इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल वही है कि आप सुबह बहुत सारी चीजों में कॉन्सेंट्रेटेड थे, इन्वॉल्व थे, तो आपको पेन नहीं फील हुआ। जैसे जैसे रात हो रही है सबकॉन्शियसली यू नो कि अभी आपको सोना है, आपकी ब्रेन शांत होने वाली है, सो दैट इज व्हेन यू एक्सपीरियंस पेन, एंड व्हेन यू स्लीप यू डोंट एक्सपीरियंस पेन। सो ये क्या है बेसिकली? अब ऐसा थोड़ी हो रहा है कि पेन कम हो जा रहा है, सेंसेशन कम हो रहा है, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट एनेस्थीसिया, हाउ डज दिस पर्टिकुलर फिनोमेना वर्क, है ना। देखो हम एक चीज को कट कर रहे हैं, टिश्यू को कट कर रहे हैं, सो इट प्रोड्यूसेस इमेंस अमाउंट ऑफ पेन, बट ये पेन को अगर मैंने ब्रेन तक पहुंचने ही नहीं दिया, है ना, इफ आई इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना, स्पेसिफिकली ये जो एनेस्थीसिया वर्क्स ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, गामा माइनोब्यूटरिक एसिड, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस द थ्रेशोल्ड ऑफ गामा, जिसकी वजह से इंपल्सेस जो है कट हो जाएगी, इंपल्सेस आगे पहुंच ही नहीं पाएगी ब्रेन में, और पेन एरिया में प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी, करेक्ट। So that is how, if we understand our brain well, we will be able to understand how to control our brain. And if we are able to control, we still are able to control our brain, है ना। A lot of people do yoga. आपने देखा रहेगा कि योगा से they do something called as elevation. ये जो बात है ना कि अरे कुछ साधु बाबा होते हैं जो जिनमें इतनी ताकत होती है कि वो जमीन से ऊपर उठ सकते हैं, इस सुनने में it appears to be a little weird because we are used to believe only things which we see, right? But please understand this, there are several things which we can't see but someone else can see, है ना। Dogs can see things which we can't see. So बोलने का मतलब ये है कि humans, ये जो perception हमने बनाया है to believe only things which we see, that is absolutely a foolish a foolish type of condition with respect to your belief, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो बात करते हैं कि योगा से क्या आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। यू आर एक्टिवेटिंग योर सबकॉन्शियस लेवल ऑफ योर ब्रेन।
So बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बता इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बहुत सारी चीजें बात कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्रेन. Okay, so now let's only understand the histology and with respect to histology and anatomy of the brain. ठीक है, बाकी सब चीजें हम क्लास में रियल टाइम क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं. एंड इफ पॉसिबल once you come back, if possible, again I'm telling you, if possible once you come back I will also show you a movie that is Lucy. Again, because I like the concept, उसकी जो brilliant concept है, so ये concept की वजह से वो movie मेरे को आपको दिखानी है. So let's see how it goes. Again, movie देखने का आपको pray करना पड़ेगा कि you have to come back to the class. All right, come back. So let's understand brain. So human brain को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 पर्टिकुलर सेक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे, right? So it is divided as forebrain, midbrain and hindbrain. ठीक है, forebrain, midbrain and hindbrain. So we will follow this particular pattern of understanding. So let's only talk about now forebrain. Forebrain, midbrain and hindbrain. ठीक है, अब जो आप डायग्राम देख रहे हो, इनिशियली when you talk about forebrain लिख लेते हैं. चलो 3 कैटेगरी है बेटा. Forebrain, also referred to as prosencephalon. Prosen pro first, ठीक है. उसके बाद midbrain, that is rhombencephalon. Prosencephalon, rhombencephalon, and last वाला क्या है बेटा, hindbrain. hindbrain को क्या बोलेंगे, rhombencephalon. ठीक है, तो जगह में डायग्राम खराब हो जाएगी, इसके लिए इतना ही लिखा है. So अब हमको सिर्फ फोरब्रेन की बात करना है. ठीक है, फ्लो चार्ट वगैरह आपको मैंने नोट्स में दिया हुआ है. So we will not, I don't want to disturb this board, so we will follow only this pattern which we are going through. ठीक है, so let's only concentrate on forebrain. ब्रेन का पहला हिस्सा हम लोग बात करेंगे, that is prosencephalon. That is forebrain. Now, what are the components which are included under forebrain? Under forebrain, we will be talking about first important component which we will be talking about is rhinencephalon. Rhinencephalon is also referred to as olfactory lobe. ठीक है, अब olfactory lobe is associated with your smell. So एक specific, अब यहां तो दिख नहीं रहा है, अंदर है, इस तरफ है, यहां पे पड़ा हुआ होगा. So what you can see here is the olfactory lobe. ठीक है, so पहला हिस्सा क्या पढ़ेंगे हम लोग, rhinencephalon. rhino refers to nose. मैंने आपको बताया था सुश्रुत जो फादर बिल्डिंग सर्जरी जिसने राइनोप्लास्टी किया था. राइनोप्लास्टी इज एसोसिएटेड विद नोज, राइनोसरस. सो एनीथिंग मतलब कॉमन कोल्ड को बोलते हैं राइनाइटिस. सो पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच इज एसोसिएटेड विद योर नोज इज राइनेंसेफेलॉन. ठीक है, अब राइनेंसेफेलॉन जो है ऑल्फैक्टरी लोब के 2 हिस्से हैं. ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब के 2 हिस्से हैं, दैट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब and olfactory tract. Olfactory bulb and olfactory tract. Tract, if you remember, we spoke about, ये भी चीजें हमने बात किया था, collection of cytons in central nervous system is called as nuclei, whereas collection of cytons in the peripheral nervous system is called as ganglion या ganglia, plural.
collection of axons in the central nervous system is called as tract, right? Whereas in the peripheral nervous system it is called as nerves, right? So olfactory bulb and olfactory tract. olfactory bulb बल्बात की हुआ है, अभी आप लॉजिक लगा सकते हो कि olfactory bulb में साइटॉन्स जमा हुए हैं, ठीक है, एंड olfactory tract में न्यूरॉन मतलब एक्सॉन्स पार्ट जमा हुआ है. So all your bipolar neurons from your olfactory mucosa. olfactory mucosa क्या बेटा? Snyderian membrane. तो ये Snyderian membrane से bipolar neurons will take up the impulses. They will यहाँ पे there will be synaptic connections. यहाँ पे cytons होंगे. These cytons will then receive the impulses and via axons they will be transported to the temporal lobe. So temporal lobe जो है साइड में, ये टेम्पोरल लोब जो है, द टेम्पोरल लोब हैज प्रोसेसिंग एरिया. इट हैज द एरिया फॉर ऑल्फैक्शन. मतलब यू कैन एसोसिएट स्मेल, आपको चीजें याद रहेगी, ठीक है. आप ये चीज समझते हो कि ये स्मेल ऑरेंज का है, ये स्मेल परफ्यूम का है, ये स्मेल काउडम का है. सो बिकॉज योर ब्रेन इज एबल टू प्रोसेस दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड उसी का एसोसिएशन एरिया होता है. हर पर्टिकुलर लोब में एक प्रोसेसिंग एरिया होता है और एक एसोसिएशन एरिया होता है. एसोसिएशन एरिया इज बेसिकली योर मेमोरी एरिया वेयर इंफॉर्मेशंस आर स्पेसिफिकली स्टोर्ड, ठीक है. सो olfactory bulb एंड olfactory tract. impulses olfactory, मैंने आपको बताया कि olfactory bulb तक कौन जा रहा है, कहां से इंपल्स जा रहा है? फ्रॉम योर Snyderian membrane. That is your olfactory mucosa. So Snyderian membrane से olfactory bulb में गया, olfactory bulb से olfactory tract में गया, olfactory tract से it goes to the olfactory area and this olfactory area is in temporal lobe. Is in temporal lobe. ठीक है. So ये हो गया अपना पहला पार्ट. So rhinencephalon फर्स्ट पार्ट खत्म. इतना ही पढ़ना है, ठीक है. Now the second part which we have to do extensively is cerebrum. तो हम लोग इसको ये कैटेगरी में पढ़ेंगे. So first let's try to list down. मैं rhinencephalon का सेक्शन इरेज कर रहा हूं बिकॉज जगह नहीं है बस. So, did you understand this much? Yes, you have understood it. I know it. I can hear you from the benches. Come back. Second portion, second part. So, rhinencephalon है. prosencephalon का दूसरा पार्ट क्या है? cerebrum. So cerebrum is the major maximum portion of your brain is cerebrum. Cerebrum को हम बोलते हैं, cerebrum is also referred to as telencephalon. ठीक है. थर्ड सेक्शन, थर्ड पार्ट जो है, जो हम लोग पढ़ेंगे that is basal nuclei और basal ganglia बोले कुछ टर्म्स में, but we know that ganglia is a misnomer. Ganglia should not be used. We have to use basal nuclei because ये central nervous system है, ठीक है. So हम लोग cerebrum पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट basal nuclei पढ़ेंगे. इसके बाद in the prosencephalon only we will be talking about diencephalon, also called as thalamencephalon. ठीक है. तो prosencephalon that is forebrain की चार major constitutive parts that is rhinencephalon, cerebrum, that is telencephalon, basal nuclei, diencephalon, that is thalamencephalon. अब cerebrum को telencephalon क्यों बोला? टीलेन मतलब टीलो मतलब end, correct? So why do we call it as? ये तो सबसे पहला वाला इसलिए why do we call it as telencephalon? So इसका रीजन ये है बेटा, telencephalon इसलिए बोलते हैं because this is the portion which functionally or which completely forms at the
एंड, है ना. अगर मैं ऑर्गेनोजेनेसिस बात करूं, ब्रेन का ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करूं, सो टेक्निकली योर सेरेब्रम कंप्लीटली फॉर्म्स, कवर होकर कंप्लीटली बनता है एट द एंड, सबसे लास्ट, इसलिए इसको बोलते हैं टील एंड सेफेलॉन. दैट पार्ट ऑफ द सेफेलॉन दैट इज ब्रेन जो टील लास्ट में बनता है. ठीक है. बेसल न्यूक्लियर कोई नाम नहीं, एक दूसरा नाम नहीं है बेटा, इट इज अ डिफ्यूज्ड टिश्यू. Diencephalon or thalamiencephalon. Thalamiencephalon associated with hypothalamus, epithalamus and thalamus. A part of the brain which is specifically associated, a section जो रीले के साथ associated है, जो glands के साथ associated है. Right? So first let's understand. अपने diencephalon खत्म कर दिया. Now we have to understand cerebrum. ठीक है. Basal nuclear diencephalon बाद में. ठीक है. So these were the parts. So now let's understand cerebrum. चलो इतना लिख लिया. cerebrum से पहले हम लोग को parts पूरा लिख लेते हैं. ठीक है. So second part is called as, the second portion which is called as mesencephalon. Second section of the brain या part of the brain is called as mesencephalon. अब mesencephalon जो है, mid brain जो है, mid brain आपको बाहर से दिखेगा नहीं, इसीलिए मैंने आपको डाइसेक्शन बोला था. ठीक है. अब ब्रेन का अगर मैं हिस्सा बात करूं, ब्रेन का आउटरमोस्ट हिस्सा इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड मीडियल पार्ट. सो कॉर्टेक्स इज द लैटरल पार्ट व्हिच इज अवे. जो बाहर का हिस्सा जो आपको दिख रहा है, द सेरेब्रम इज द लैटरल पार्ट, whereas midbrain lies in the medial region. अंदर है midbrain. यहाँ पे डायग्राम में भी आपको midbrain दिखेगा नहीं. So midbrain अंदर छुपा हुआ है. मतलब आप ये समझ सकते हो कि it forms the brain stalk, brain stem. So ऐसा brain stem है. इसके ऊपर ना ही सब जैसे आइसक्रीम लगाते हो ना, ओवरफ्लोइंग आइसक्रीम लगा दो, तो this is your brain stem जिसके ऊपर मस्त ऐसे thick there is a tissue that is cerebrum. ठीक है बेटा. तो ब्रेन मिड ब्रेन जो है प्रेजेंट इनसाइड. तो मिड ब्रेन के दो हिस्से हैं. ठीक है. मिड ब्रेन कैन नॉट बी सीन. मिड ब्रेन के दो हिस्से हैं एंड दैट इज फर्स्ट वन इज रेफर्ड टू एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. If you remember corpora quadrigemina, we spoke that corpora quadrigemina and corpus callosum are characteristically exclusive feature of a mammal. ठीक है. तो corpora quadrigemina के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. corpora quadrigemina exclusive feature of the mammal. दूसरा पार्ट है crura cerebri. crura cerebri or also referred to as cerebral peduncle. cerebral peduncle stalk या stem. ठीक है. So mesencephalon में दो ही हिस्से हैं. Moving ahead, we have hind brain also called as rhombencephalon. rhombencephalon के तीन हिस्से हैं. दैट इज सेरिबेलम. सेरिबेलम को बोलते हैं बेटा मीटेनसेफेलॉन. टीलेम और मीटेन कंफ्यूज नहीं होना, दोनों देखो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा वर्ड दिया है. सेरिबेलम इज मीटेन एंड सेरिब्रम इज टीलेम. इसलिए मैंने आपको रीजन बता दिया. बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. बिकॉज वो उनको लगता है टीलो मतलब एंड है, एंड में तो लास्ट में तो क्या था, तो ये उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. सो अवॉइड कंफ्यूजंस. सो इट इज रेफर्ड टू एज mesencephalon. सेकंड पोर्शन इज pons varoli and the third section is medulla oblongata. medulla oblongata. medulla oblongata का दूसरा नाम है myelencephalon. myelencephalon.
ठीक है, myelsencephalon, because myelin is the other name for spinal cord. तो that part of the brain जो spinal cord extend होकर spinal cord बनाएगा, that is medulla oblongata. ठीक है, so these were the this is how we'll be talking about the entire sections of the brain. ठीक है, so let's understand cerebrum in detail. ठीक है, एनसेफेलॉन का सेकंड पोर्शन हम लोग फोर ब्रेन का सेकंड पोर्शन बात कर रहे हैं, दैट इज सेरिब्रम. और टीलेंसेफेलॉन. Now cerebrum forms the maximum portion of your brain. Cerebrum forms the maximum portion of your brain. ठीक है, अब ब्रेन में भी हमको ये याद करना है कि ब्रेन हैज आउटर, इट हैज ग्रे मैटर एंड इनसाइड इट हैज व्हाइट मैटर. वी आल्सो नो दैट ग्रे मैटर ग्रे क्यों है, बिकॉज़ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ साइटॉन्स, एंड व्हाइट मैटर बिकॉज़ द प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स. सो आउटर ग्रे मैटर, इनर व्हाइट मैटर. ठीक है, अब ब्रेन को एक एक्स्ट्रा इसकी कवरिंग है बेटा, वो कवरिंग के बारे में भी हम अभी बात करेंगे. ठीक है, सो ब्रेन इज एब्सोल्युटली प्रेजेंट. वेयर इज इट एब्सोल्युटली प्रेजेंट? अब देखो बाकी जो फीचर्स है वो आप खुद से लिख सकते हो कि वेट कितनी है, कैपेसिटी कितनी है ना, और बाकी सब खुद से पढ़ सकते हो. 4 मिनट अगर पढ़ने गया तो कॉन्शियस हो जाएंगे, 6 मिनट पढ़ने गया तो इंसान मर जाएगा. स्ट्रोक क्या होता है ब्रेन से रिलेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू ऑलरेडी नो, आप खुद से पढ़ सकते हो. आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन मच, करेक्ट? बट व्हेन यू टॉक अबाउट, देयर आर समथिंग कॉल्ड एज मेनिंजेस. ठीक है, ब्रेन को सपोर्टिव या प्रोटेक्टिव फंक्शंस जिसका है, दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, एंड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज मेनिंजेस. ठीक है, मेनिंजेस जो है 3 टाइप के बेटा. ठीक है, आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज ड्यूरामेटर, उसके बाद होता है एरेक्नॉइड मीटर एंड पायामेटर. सो मेनिंजेस और वेंट्रिकल्स, ये 2 सेक्शन ऑफ द ब्रेन है जो हमको अलग से करना है. सो वी आफ्टर वी डू सेरिब्रम, उसके बाद हम ये टॉपिक को लेंगे विद डायग्राम. सो मेनिंजेस प्लीज, मेनिंजेस और वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, तो ये 2 सेक्शन को बाद में करेंगे. राइट, सो लेट्स नाउ ओनली फिनिश अप टॉक अबाउट सेरिब्रम. ठीक है, अब सेरिब्रम में, cerebrum basically forms the lateral part of the brain. It forms the lateral part of the brain. And brain या cerebrum is divided under 2 major hemispheres. Cerebral hemisphere. Cerebrum 2 hemispheres से बना हुआ है. So you have the left cerebral hemisphere and you have the right cerebral hemispheres. Generally, left hemisphere is larger than the right hemisphere. मतलब अब ये तो लॉजिक ये है कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, इसलिए आप देखते हो तो बिकॉज आप राइट साइड को बहुत ज्यादा यूज करते हो, सॉरी राइट साइड को बहुत ज्यादा यूज करते हो, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक रीजन हो सकता है. सो राइट एंड लेफ्ट में लेफ्ट इज लार्जर देन दी राइट, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज लार्जर देन दी राइट. ठीक है, सो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ के जो रखता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ के रखता है, दैट इज देयर इज अ कनेक्टिव ट्रांसफर बैंड ऑफ ट्रांसवर्स नर्व्स, दैट इज कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, अब पहले इस ये डायग्राम पे बाद में आते हैं, पहले हम बाहर के स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेते हैं. सो आई टोल्ड यू दैट सेरेब्रम इज divided into 2 lobes or two hemispheres, that is left and right cerebral hemispheres, and the division is due to or by a particular groove or a depression. इसको बोलते हैं longitudinal commissure. Longitudinal commissure. ठीक है, so longitudinal commissure basically marks the separation of left and right cerebral hemispheres. तो अगर आपने ब्रेन को फ्रेश ब्रेन को निकाला, it's so soft, absolutely soft, the tissue is so delicate. अगर आपने ब्रेन को निकाला, और जैसे हम ब्रेन को स्टडी भी करते हैं ना, तो जनरली वो फॉर्मेलिन के जो बकेट है या बीकर है, फॉर्मेलिन के बीकर में डालते नहीं उसको, इट इज हंग, है ना, रस्सी लगाते हैं और इट इज हंग एंड
and it is dipped into this beaker या bucket of formalin. ऐसा नहीं रख नहीं देते. It is not kept on a surface. क्योंकि जैसा वो जो फ्लैट सरफेस पे रखा तो ब्रेन फ्लैट एक हिस्सा पूरा फ्लैट हो जाएगा. So technically that is how that soft and that squishy it is. ठीक है. Any strong particular hit will absolutely damage the internal structures of the brain. Internal parts of the cerebrum. So बहुत soft tissue है. ठीक है. अगर मैंने जमीन पे ऐसे टेबल पे रख भी दिया तो ऐसे दो लोब्स में डिवाइड हो जाएंगे. दो पर्टिकुलर हेमिस्फीयर में डिवाइड दिखेंगे कैरेक्टरिस्टिकली इस तरफ गिरते हुए. So now let's consider each hemisphere. Every hemisphere is further divided under 4 lobes. मतलब एक हेमिस्फीयर आधा अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कट करा और उसको टेबल पे रखा तो अगेन ये 4 अलग-अलग लोब्स में टूटेंगे. ठीक है. So the 4 lobes of the cerebrum, the 4 cerebral lobes are F pot. इसको ऐसे याद रखोगे F pot. ठीक है. इमेजिन करो कि ये ब्रेन है ना. ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर है. देखो लेफ्ट हेमिस्फीयर इज लार्जर देन द राइट हेमिस्फीयर. सो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर है. इसको आपको याद कैसे करना है? F pot. फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल. कितने लोब है? 4. फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल. ठीक है. So diagrammatically if you have to see this, so this section of your brain is frontal lobe. ठीक है. फ्रंटल ऊपर वाला जो हिस्सा है that is parietal lobe. ठीक है. पीछे वाला जो हिस्सा है that is occipital lobe या occipital lobe. और लैटरल हिस्सा है that is your temporal lobe. Very clear? So 4 different lobes. Now these 4 different lobes are divided by different depressions. ये depressions को हम बोलेंगे sulcus. ठीक है. अब ब्रेन में भी if you can see the surface is quite uneven. There are certain raised structures and there are certain depressions. ठीक है. So there are raised structures. ऐसे थोड़ा सा लिखने दिखेंगे, raised दिखेंगे. They are called as gyri. So the raised structures are referred to as gyri या gyrus. Singular is gyrus. एंड जो डिप्रेशन है उसको हम बोलेंगे सल्कस. ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है दैट इज सल्काई या सल्कस. सो गायरा एंड सल्काई में हम मानते हैं कि more the number of gyri and sulci, higher is the intelligence, higher is the IQ level of that particular individual. ठीक है. अब रीजन क्या है कि ज्यादा गायरा सल्का है मतलब ज्यादा फोल्डिंग होगा. ज्यादा फोल्डिंग मतलब ज्यादा ब्रेन टिश्यू इन स्मॉल एरिया. सो इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ब्रेन टिश्यू. सो मोर gyri and sulci is indicative of more brain tissue and more brain tissue is indicative of a higher level of intelligence, right? So gyri and sulci तो है, but at certain places the sulci gets even more deeper and now the sulci is called as a fissure. ठीक है. ऐसे ही आपके पास हर लोब में there are 3 fissures which we need to remember. जिससे हम लोब्स को डिवाइड करते हैं. So frontal and parietal लोब को डिफरेंशिएट 2 हिस्सों में. फ्रंटल सामने का है, parietal ऊपर है, lateral जो है that is temporal, पीछे जो है that is occipital. ठीक है. So frontal and parietal लोब को जो sulcus डिवाइड करता है that is called as central sulcus. Almost center पे है ना. It is called as central sulcus or it is also called as fissure of Rolando. ठीक है. What is it doing? What is the characteristic feature of central sulcus? It divides or it separates or it differentiates frontal lobe and parietal lobe. ठीक है. इन दोनों के बीच में क्या है? सेंट्रल sulcus, also called as fissure of Rolando. Similarly,
पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब के बीच में, पैराइटल और ऑसिपिटल लोब के बीच में, यहां पर मैंने मार्क किया हुआ है, 1 सेकेंड, कोई बात नहीं, इसको मार्क किया हुआ है, इस दायरा लिख लेते हैं, ठीक है। सो पैराइटल और ऑसिपिटल लोब के बीच में, पैराइटल और ऑसिपिटल लोब के बीच में there is a sulcus which is called as parieto occipital sulcus, कोई दूसरा नाम नहीं, parieto occipital sulcus, parieto occipital sulcus, it divides or it differentiates parietal lobe with occipital lobe. Central sulcus, it divides frontal and parietal, parieto-occipital नाम बता रहा है, parietal and occipital, ठीक है। अब parietal और temporal के बीच में भी डिफरेंशिएशन है, और ये अगर ऐसा रखा तो लैटरल पार्ट में गिरेंगे, करेक्ट, लोब्स लैटरल पार्ट की तरफ ऐसे मूव होंगे, they will fall towards the lateral sulcus, lateral surface, hence this sulcus is referred to as lateral sulcus। क्या बोलेंगे बेटा इसको? लैटरल sulcus। Lateral sulcus, or also called as lateral sulcus, also called as fissure of Sylvius, ठीक है, also called as fissure of Sylvius। fissure of Sylvius किसके बीच में है बेटा? किसके बीच में है? फ्रंट पैराइटल एंड टेम्पोरल के बीच, पैराइटल एंड टेम्पोरल के बीच। सो अगेन रिवाइजिंग इट, फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में जो sulcus है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल sulcus, then you have parieto-occipital sulcus, then you have lateral sulcus, or also called as fissure of Sylvius, ठीक है। So this is the external morphology। Let's now label the rest parts, जो बचा पार्ट है वो लेबल कर देते हैं। So this is your olfactory lobe, if you remember, rhinencephalon, ये आपका सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम को हम क्या बोलते हैं? टीलेंसेफेलॉन, and this region is your medulla oblongata, and medulla oblongata को हम क्या बोलते हैं? माइलेंसेफेलॉन, ठीक है। So this is external morphology, या external divisions या lobar divisions, ठीक। When you talk about frontal lobe, frontal lobe is associated, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं, lobar division में, then I will erase this, ठीक है। Frontal lobe is associated with motor skills, ठीक है। जो भी आपकी मोटर स्किल्स विद रिस्पेक्ट टू योर जजमेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, है ना, ये सब जो एट्रिब्यूट्स है, मोटिवेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो ये सब जो मोटर स्किल्स है, इवन फॉर एग्जांपल फॉर एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू योर स्पीच, there is an area which is called as Broca's area of motor speech, right? जब हम कोई एक लैंग्वेज को सीखते हैं, when we start speaking that particular language, we increase the fluency of that language, correct? That means we are polishing, or we are developing, or we are catering to your Broca's area of motor speech. जो लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो, that is due to motor area, that is Broca's area. Broca's area में left hemisphere में होता है, इस स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज एरिया है, hence it is also called as Broca's area of motor speech. आज आपको एक रिसर्च टॉपिक दे रहा हूं, and that research topic is you have to understand, or you have to get the information with respect to a topic called as Broca's aphasia, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट इज ब्रोकास अपफेजिया. फॉर नाउ गो एंड गूगल योरसेल्फ व्हाट इज द ब्रोकास अपफेजिया एंड ट्राई टू रीड अबाउट इट. डू नॉट राइट एनीथिंग, ट्राई टू रीड अबाउट इट सो दैट जब आप ब्रोकास अपफेजिया पढ़ोगे ना, यू विल आल्सो कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ टर्म्स रिलेटेड एंड एट्रीब्यूटेड टू योर ब्रेन. सो फ्रंटल लोब का मेजर काम क्या है? मोटर स्किल्स. ठीक है, एक एक लाइन बाद में हम डिटेल में बात करेंगे. एक एक लाइन में मोटर स्किल्स. पैराइटल लोब, पैराइटल लोब. अब पैराइटल लोब क्या है बेटा? पी है ना. पैराइटल लोब पी से चल रहा है. सो पैराइटल लोब में सेंसरी इनपुट्स है. सो पैराइटल लोब इज एसोसिएटेड विद सेंसरी एरियाज. अब सेंसरी एरियाज विद रिस्पेक्ट टू पेन, प्रेशर, टच. ठीक है, इसके साथ एक और एरिया आता है दैट इज गस्टेटरी एरिया. लॉजिक. टच, टंग पे भी टेस्ट टच हो रहा है, ऐसे याद रखना है. कंफ्यूज कर मतलब याद रखने के लिए बोल रहा हूं. ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट डायरेक्ट मैं आपको बोल सकता हूं क्यों आया आपको, बट आप रिमेंबर यू कैन अंडरस्टैंड दिस. पेन, प्रेशर, टच, ऐसे याद रखना. पीपी, टीटी. पीपी इज पेन प्रेशर, टीटी इज टच टंग. ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो पैराइटल लोब देयर इज वन मोर एरिया व्हिच इज एसोसिएटेड विद मैनेजिंग और associated with controlling or yeah, processing your taste receptors. ठीक, सेंसरी एरियाज. इसके बाद हम क्या लिखेंगे? टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब इज आल्सो एसोसिएटेड विद सर्टेन सेंसरी स्किल्स. ठीक है, अब सेंसरी स्किल्स में टेम्पोरल लोब में बाकी के जितने भी सेंसेस बचे हैं हमारे पास, दैट इज एए ऑडिशन, एओ एओ आउट, ऑडिशन एंड ऑल्फैक्शन. ये दोनों कहां पे है? टेम्पोरल पे है. ऑल्फैक्शन मतलब नाक और कान. स्मेल एंड हियरिंग इज एसोसिएटेड इन द टेम्पोरल लोब. एंड द लास्ट वन इज ऑसिपिटल लोब. बचता एक है दैट इज विजन. सो बॉडी के 5 सेंसेस है ना. 5 special senses which you have, that is touch, skin, then eyes, vision, then ear, audition, then taste, that is gustation, and then smell which is olfaction. उस 5 सेंसेस में से 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है. 2 यहाँ पे कौन से है? टच है और टंग है, that is gustation है. यहाँ पे आओ है, that is audition and olfaction. And last में औसत पूरी दुनिया जाती है, it is only vision. So एक लाइन में आप इतना लिख लो बेटा. ठीक है, so for now you only have to associate या understand only this much. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So now let's try to understand the internal structures of the brain. Internal structures. ठीक है, I told you the brain का lateral part is gray matter and medial part is white matter. ठीक है, so brain का outermost region ये है, ये क्या है? This is a lateral section of the brain, a LS of the brain. ठीक है, LS of the brain. So what we can already know कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को डिवाइड करने वाला एक व्हाइट कलर का ट्रांसवर्स टिश्यू है एंड दैट इज रेफर्ड टू एज कॉर्पस कैलोजम. कॉर्पस कैलोजम दिख रहा है आपको? ये दिस इज कॉर्पस कैलोजम. कॉर्पस कैलोजम क्या है? ट्रांसवर्स बैंड ऑफ नर्व्स. मतलब राइट और लेफ्ट का जो प्रोसेस, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब टेक्निकली जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपल्सेस है, दे आर प्रोसेस्ड इन बोथ द हेमिस्फीयर्स टेक्निकली, बिकॉज़ एरियाज सिमेट्रिकली दोनों पर्टिकुलर लोब्स में होते हैं, दोनों हेमिस्फीयर्स में होते हैं. राइट, सो कॉर्पस कैलोजम. कॉर्पस कैलोजम का एंटीरियर हिस्सा, एंटीरियर टर्न या फोल्ड या एंड पोस्टीरियर फोल्ड. ठीक है आपको? कॉर्पस कैलोजम का एक एंटीरियर हिस्सा है, एक पोस्टीरियर हिस्सा है.
the anterior हिस्सा, the anterior region of corpus callosum is called as genu. ठीक है, whereas posterior part is called as splenium. ठीक है, रीजन है ये. अगेन आई टोल्ड यू, ये सब जो पार्ट्स है दे विल नॉट बी सीन कैरेक्टरिस्टिकली एज अ डिफरेंट ऑर्गन, दे आर डिफ्यूज्ड टिश्यू. आपको रीजन आइडेंटिफाई करने होंगे. जैसे इंडिया का मैप है उसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है. सिमिलरली ब्रेन में भी यू विल नॉट हैव ऑर्गन स्पेसिफिकली ऐसा दिख के नहीं आएंगे. ठीक है, सिर्फ मिड ब्रेन दिखता है, बाकी सब इट इज अ डिफ्यूज्ड टिश्यू. ठीक. So corpus callosum का anterior folding या anterior turn is called as genu and posteriorly it is called as splenium. अब corpus callosum के दो lateral extensions आते हैं. आप समझ रहे हो? तो this is your, ये सांप है. corpus callosum एक सांप के जैसे है, इमेजिन कर लो. ठीक है, इमेजिन कर लो ऐसा एक बैंड है. तो एक हिस्सा इस तरफ जा रहा है, एक पर्टिकुलर extension of corpus callosum moves into the lateral hemispheres, मतलब lateral sections. एक हिस्सा ऐसा है, तो एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है. Can you see this? है ना? तो this corpus, ये 2-dimensional diagram है बेटा. 3-dimensionally this section ये ऐसे जा रहा है. ठीक है. So individually there are two lateral posterior extensions of corpus callosum जिसको हम बोलेंगे fornix. This region, this extension is called as fornix. And fornix जो है, fornix left and right hemispheres दोनों में अंदर एंटर करता है. ठीक है, what is it? It is a connection or extension of corpus callosum itself. ठीक है, so corpus callosum में इतना ही है. corpus callosum के दो पार्ट, दो sections, genu, splenium and fornix. ठीक. अब जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, that is your cerebral cortex या cerebrum. In other words, cerebral cortex को या cerebrum बोलो, simple. ठीक है, cerebral cortex. Cool. Now what you can see in the medial region, lateral region हो गया है बेटा, medial region. चलो ये भी लेवल कर लेते हैं. medial lateral region में एक और region है, ये क्या है बेटा? आपका olfactory bulb. और ये क्या है आपका? olfactory tract. olfactory tract. ठीक है. Now let's talk about the medial section. So what you can see here, एक egg shape का structure जो आपको दिख रहा है, that region is called as thalamus. ठीक है, thalamus which forms the part of your diencephalon. ये region, thalamus का ऊपर वाला हिस्सा जो है, region जो है, that is called as epithalamus. and नीचे वाला हिस्सा जो है, thalamus का नीचे वाला हिस्सा जो है, that is called as hypothalamus. जो दुनिया जानती है ना, hypothalamus is again glandular and also a neural in function. It is a anatomical link between control systems. That is anatomical link between neural control and chemical control systems. ठीक है, hypothalamus this region which you can see here, this region is the optic chiasma. optic chiasma लिखने के लिए जगह नहीं है. ये जो region आपको दिख रहा है that is optic chiasma. ठीक है, this what you can see is a pituitary gland which is hanging down from the pituitary gland which is hanging from the hypothalamus. ठीक है, ये जो हिस्सा that is pons varolai. pons varolai. ठीक है बेटा, moving ahead. So what you can see here in this particular region, that is thalamus के thalamus के around there is the third ventricle. ठीक है, ventricles are open spaces जहां पे CSF भरा हुआ है, open spaces जहां पे CSF भरा हुआ है. ठीक है, so आपके पास दो choroid plexus, if you remember we have spoken about choroid plexus, correct? ciliated epithelium में पढ़ा था, microvilli epithelium में पढ़ा था. So choroid plexus and ependymal cells, if you remember. The ependymal cells produce CSF in the presence of or in the association with choroid plexus. ठीक है, तो ये जो region है that is your anterior choroid plexus.
एंटीरियर कोरोइड प्लेक्स मतलब ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, ठीक है। व्हाट इज दिस? पीनियल बॉडी, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये जो नेक्स्ट मूविंग अहेड विद दी सेरिबेलम, सेरिबेलम, दिस इज सेरिबेलम, ठीक है। द इंटरनल पार्ट ऐसे ट्री लाइक अपीयरेंस जो आपको दिख रहा है, सेरिबेलम को कट किया है तो अंदर एक ट्री लाइक व्हाइट मैटर का ट्री लाइक अपीयरेंस दिखेगा, दैट ट्री लाइक अपीयरेंस इज कॉल्ड एज आर्बोर वाइटे। आर्बोर मतलब ट्री, arborization if you remember, arbor vitae, vital, so it is tree of life, something which is extremely important to your life, tree of life, cool. So this was the third ventricle. First and the second ventricles are in the subsequent hemispheres, lateral parts में, subsequent hemispheres में छोटे छोटे दो hemispheres हैं, लेफ्ट एंड राइट, उसमें छोटे छोटे स्पेसेस है which is called as first and the second ventricle, ठीक है। The third ventricle is around the diencephalon and fourth ventricle is near the cerebellum, ठीक है। So this region which you can see, this is the fourth ventricle, ठीक है। ये थर्ड वेंट्रिकल था, ये फोर्थ वेंट्रिकल था। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में देयर इज अ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, अ कनेक्शन बिटवीन थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। दिस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज aqueduct of Sylvius या aqueduct of Eiter या simply cerebral aqueduct, ठीक है। What is aqueduct? It's a structure or it is a canal like structure which connects third and the fourth ventricle. Aqueduct of Sylvius, बोलो ये aqueduct of Eiter, Sylvius दो बार पढ़ा है, इधर फिशर ऑफ सिल्वियस पढ़ा, इधर aqueduct of Sylvius पढ़ा, ठीक है। या aqueduct of Sylvius या aqueduct of Eiter या cerebral aqueduct, ठीक है। In the fourth ventricle you will have posterior choroid plexus. Do we remember this, that the anterior choroid plexus produces maximum CSF, posterior choroid plexus, and this one is your medulla oblongata. मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। सो स्टिल वी हैव टू कंप्लीट सेरिब्रम। सेरिब्रम की बहुत सारे पार्ट हमको और भी बात करने हैं, है ना, बट मी ओके। So this was with respect to your internal LS medial part of the brain को हमने लेबल कर दिया, ठीक है। So lateral part भी हो गया अपना, lateral part that is lobar divisions भी हो गए and internal parts भी हो गए, ठीक है। Gyri sulci के बारे में हमने बात कर लिया कि gyri sulci क्या है, and gyri sulci is determining the degree of intelligence, ठीक। And then I spoke about that there are different areas in your brain. I told you, let's quickly discuss now. So frontal lobe, I told you, frontal lobe में अगर मार लग गई, so the person will absolutely lose the ability to perform motor skills, है ना। अब motor skills क्या क्या है frontal lobe में? motor ये याद आपके notes में लिखा हुआ है, ये आपको सिर्फ सुनना है, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे। So frontal lobe is associated with motor skills with respect to your speech, ठीक। इसके अलावा जजमेंट मतलब टू थिंक टू मतलब वो होता है ना कि गाड़ी चला रहे थे एक जजमेंट होती है, पार्किंग करते थे एक जजमेंट होती है, तो जजमेंट एसोसिएटेड विद दैट। देन यू हैव एप्टीट्यूड, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सम पीपल आर, उनकी अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बेटर देन द अदर्स, सो उनकी वो एरिया ज्यादा डेवलप्ड है। कुछ बच्चे स्कॉलरशिप के एग्जाम में बहुत अच्छा कर लेते हैं और कुछ बच्चे लैंग्वेज में बहुत अच्छा करते हैं। सो ये सब चीजें डिफरेंसेस जो है दे आर ऑल एसोसिएटेड विद योर फ्रंटल लोब। तो आपका इनोवेशन
है ना, क्रिएटिविटी, टैलेंट, जो भी आप ड्राइंग करते हो, क्रिएशन, क्रिएटिविटी दिखाते हो, इनोवेशन दिखाते हो, ऑल ऑफ दैट इज एसोसिएटेड विद योर फ्रंटल लोब। ठीक है, वी आल्सो स्पोक अबाउट ब्रोकास अफेजिया। चलो मैंने ब्रोकास अफेजिया पढ़ लेना, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। ब्रोकास अफेजिया क्या है बेटा? देयर इज वन मोर डिजीज जिसके ऊपर मूवी बनी थी, इच की, इसके बारे में भी आप पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास। So let's understand what is Broca's aphasia. Broca's aphasia is inability to speak specific sounds. Inability to speak specific sounds. आपने ये सुना होगा। देखो, stammering is different, है ना? ऐसा ये जो बोलते हैं ना, बोलते बोलते अटक जाते हैं और एक साउंड का अटक जाता है और वो बोल देते बाद में, दैट इज स्टैमरिंग। ठीक है, और तोतलापन वो अलग है, दिस इज aphasia. The person is unable to speak that particular sound. Let's say for example, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मेरे को ब्रोकास अफेजिया है, तो मैं बात कैसे करूंगा? I am from Bombay. So यहाँ पे I was stuck at the word B, right? So ब्रोकास अफेजिया में यही होता है, मतलब specific sounds पे, specific phonetic sounds पे अटक जाता है। ठीक है बेटा? So that is with respect to your frontal lobe, and frontal lobe में Broca's area है, frontal lobe में association area है। I told you every particular lobe or every particular area has its own association area. तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल olfaction की बात करूं, ठीक है, टेम्पोरल लोब में olfactory एरिया है और उसका association एरिया है। तो olfactory एरिया में the information will be processed, मतलब टेक्निकली इट विल बी अंडरस्टूड कि ये काउडंग की स्मेल है, ये गोल्ड अपना पार्क एवेन्यू गुड मॉर्निंग का स्मेल है, तो प्रोसेस हो रहा है। वेयर इज द एसोसिएशन एरिया ऑफ olfactory एरिया, एसोसिएशन एरिया ऑफ द olfactory रीजन, वहां पे इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड एज द मेमोरी, क्योंकि एसोसिएशन एरिया में एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं। एसोसिएशन एरिया न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं, राइट? तो जितना ज्यादा एसोसिएशन एरिया उतना ज्यादा आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, सेंसरी से मोटर का कनेक्शन स्ट्रांग होगा। एंड इफ योर सेंसरी टू मोटर का कनेक्शन इज वेरी स्ट्रांग, दैट मींस योर रिकलेक्टिंग पावर, योर मेमोरी इज एब्सोल्युटली स्ट्रांग। वेरी क्लियर? सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फ्रंटल लोब। चलो बात करते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में देयर इज एन एरिया व्हिच इज कॉल्ड एज सोमास्थेटिक एरिया। Now somaस्थेटिक area is that area which is associated with this pain pressure touch. अब यहाँ पे प्रेशर का मतलब आप समझ गए, है ना? प्रेशर पट करके जोर से मारा, ऐसे सिर्फ हाथ लगाया तो कम प्रेशर लगा, जोर से मारा तो ज्यादा प्रेशर लगा, चिमटी मारा तो ज्यादा प्रेशर लगा। So pain, pressure and touch, ठीक है? Touch, pain and pressure, all that is associated with your parietal lobe. इसके साथ I also told you gustation, right? और गस्टेशन का there is one more area which is also referred to as गस्टेशन का एक और एरिया क्या है आपका? गस्टेशन का एक और एरिया है आपका एसोसिएशन एरिया, ठीक है? Then there is another area which is another lobe that is olfaction and audition, जिसमें again आपका एसोसिएशन एरिया होगा, and occipital lobe में भी there is association area related to that. ठीक है? So that ends with our first topic, that is cerebrum. So for today we wind up our class with this much information for today. ठीक है? And in the next class we'll continue with basal nuclei, basal gang nuclei, limbic system and other parts of your brain. ठीक है? So for now that is all for today. God bless you. Take care of yourself and keep praying. Keep studying, keep yourself healthy and keep smiling. Thank you so much. God bless you.